Welcome to the Money the Learning app. Now today we are going to start new chapter of new class, that is class 7. Chapter name is integer. Okay. So now we are starting chapter number 1. First of all, introduction. Now in class you know about the whole numbers. What are the whole numbers? Numbers, those are started from 0, 1, 2, 3 and goes up to the infinity. They are the set of whole numbers that we have discussed till class 6. Now with positive or negative sign are called the integer. Now what is the integers? The whole numbers which are along with the sign, either it is the positive or the negative, they are the integers. And how we have to plot the integers? It is a number line. In this number line, this color is not look nice. So first of all, we will rub this. Now, we have to plot a single line. And this is 0. It is just like a middle point. And go to this side, 1, 2, 3. And in this side also up to the infinity. And here is also left. This is the left side and it is the right hand side. Okay. And there we have to write -1, -2 like that up to the minus infinity. Okay. Now, then next is types of integers. After this, what we will discuss about the, first of all, we have to know that what is the integers. Then we have to discuss about the types of integers. Now, what are the types of integers? First is positive integers. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, dash, 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 10,000, 20,000, whatever number you want, you can take it. Are the natural numbers are called the positive integers. So what are the positive integers? All the natural numbers, जितने भी natural numbers है वो क्या होंगे? Positive integers होंगे. You know that set of natural number is represented by capital N. And this is the set which we can represent like this. These are the set of natural number and all are the positive integers. So first type of the types of the integer is positive integers. Now second is negative integers. Now what are the negative integers? The numbers -1, -2, -3, -5, all the numbers, all the positive numbers with negative sign are the negative integers. Then third one is zero integers. The number 0 is simply an integer. It is neither positive nor negative. That we have already knows that कि हमें क्या पता है कि 0 में कोई भी साइन नहीं होता. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार लिखा -0 और एक बार लिखा +0 और बोल दें कि मैम ये तो दोनों डिफरेंट है. डिफरेंट होते ही नहीं है. नेवर दे आर सेम. ऑलवेज never they are different. Always the 0 is 0. जैसे बैलेंस होता है उसका जो मिडिल पॉइंट है वो 0 है. आप इस तरीके से समझ सकते हो. ओके. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि what is the first of all what we have discussed. In first of all we have discussed about the introduction. Then what is the integer. Then we will discuss the types of the integers. We have the 3 types of integers. Positive integers, negative integers and then zero integers. Then next is one example is there. We have to understand with the help of this example what are the integers. Now what is given in the example? Write the predecessor and successor of the following numbers. Numbers are given. Okay, this is the n square. What is the predecessor and successor? In class 6 we have discussed about it. What is the predecessor means whatever number is given. Suppose I will take the simple number 1. Okay. If 1 is there, I have to find out the predecessor. In short, I am writing P. And the successor I am writing S. So 1 minus 1 is 0. And 1 plus 1 is 2. So what we can conclude कि predecessor क्या होगा, जो भी नंबर दे रखा है उसमें से एक बैक स्टेप चले जाओ.
ठीक है, अब मैम बैक स्टेप क्यों बोल रही है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से शिफ्ट होगा। सपोज हियर इज एग्जाम्पल इज देयर, इन दिस एग्जाम्पल 4 इज देयर, -1 किया, प्रेडेसेसर आ गया, +1 किया, सक्सेसर आ गया। तो 4 का प्रेडेसेसर 3 एंड सक्सेसर 5, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं -4, इसमें से -1 करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द नंबर लाइन, अगर मैम नंबर लाइन की बात करती हैं तो ये 0, -4 इज देयर, तो -4 तक जाएंगे, -1, -2, -3, देन इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, लाइन गायब होगी, चलो दोबारा ड्रॉ करते हैं लाइन, ठीक है। हमें क्या करना है, सपोज ये 0 है, 0 हमेशा बैलेंस में रहेगा, मिडिल में, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, there is 1, 2, 3 are there, okay. In class 6 we have discussed about predecessor and successor of very first chapter of the class 6, that everybody knows what is predecessor and successor. Now -4 is there, so come on -4. What we have to do when we are talking about the subtraction means we have to move in left side. जब भी subtraction की बात होगी किसी नंबर में से तो हम लेफ्ट में जाएंगे, और एडिशन की बात होगी तो हम राइट में जाएंगे। तो यहाँ -4 है, -4 के 1 स्टेप बैक जाओ, आंसर क्या आ गया आपका? -5। तो इन जनरल वी कैन से दैट दिस इज -5, ओके। Then next one is what? Successor, so +1, minus plus, that rule we will discuss in afterwards, that is -3, means जब सक्सेसर है, जब आगे बढ़ना है तो हम नंबर लाइन पर कहाँ जाएंगे? राइट में आगे जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना बेटा, then you feel happy, okay। अब 6 की बात है, सक्सेस प्रेडेसेसर -1, तो 6 से 5 हो गया, सक्सेसर +1 ऐड किया हमने तो 7 हो गया। सिमिलरली फॉर 1 ऑल्सो, -1, 1 - 1 is 0 and 1 + 1 2, this I had given you this example also. Now अगर कोई वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, whatever the variable is there, what we have to do, जो भी नंबर दे रखा है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है या नंबर है, हमें करना तो क्या है? -1 ही लिखना है, b - 1 ही होगा प्रेडेसेसर, और जब सक्सेस की बात होगी तो वो क्या होगा? b + 1, okay. Now next is n square, it is n square, okay, by mistake it is written. तो जब n square है, whatever the number is there, don't think about that number, हमें तो क्या है, जो भी नंबर दे रखा है प्रेडेसेसर उसका एक पहले वाला होता है, 1 स्टेप बैक लेना है और सक्सेसर में 1 स्टेप अहेड करना है। मतलब हमें क्या करना है, समझ में आया आपको? कि हमें जब प्रेडेसेसर की बात होगी एक नंबर पीछे जाएंगे, और जब सक्सेसर की बात होगी एक नंबर आगे जाएंगे। इन जनरल 7th क्लास में आप हो, नेक्स्ट क्लास में सक्सीड होके कहाँ जाओगे? 8th क्लास में जाओगे। और लास्ट ईयर कौन सी क्लास में थे? डेफिनेटली you was in 6th class, okay. I think all are understood this question example. Now that I had explained you with the help of this number line in last example also कि हमें कैसे करना है। अब हम यहाँ पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे। What is process? Process is given to you. Positive numbers are always on right side of the 0. That we already know. Class 6 में भी हमें नंबर लाइन प्लॉट करना सीखा था। तो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन एक लाइन है। लाइन क्यों है? हमने पढ़ा है ज्योमेट्री के अंदर। लाइन अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्लास 5 तक आपने क्या किया था? यू हैव ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सपोज ये 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट है। अब मुझे लाइन बनानी है, तो लाइन बनाने के लिए मुझे क्या करना है? सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है, इट इज गोज अप टू द इंफिनिटी। जो लाइन होगी वो अनंत तक जाएगी, उसके कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन लाइन सेगमेंट की क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स होते हैं। तो हमें यहाँ क्या ड्रॉ करनी है? लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इंटीजर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्मॉल इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं, हो सकता था -20 होता, -20,000,
प्लस 20,000, कुछ भी नंबर हो सकता है स्टूडेंट्स, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑब्जर्व दैट अबाउट दैट नंबर ओनली। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये देखना है वो नंबर क्या है, जीरो किया और उसके बाद उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया, इसे बोलते हैं नंबर लाइन। दोनों साइड क्या है, एरो। मतलब एरो का मतलब क्या है कि इसके आगे 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, एंड इन दिस साइड -3, -4, -5, -6 लाइक दैट। नाउ पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ऑन राइट साइड ऑफ द जीरो। अब अगर आप इस जीरो की बात करें, आप मैंने बोला था बैलेंस को मान लो, जो बैलेंस का मिडिल पॉइंट होता है उसे हम जीरो मान लेते हैं। जीरो हमेशा जीरो रहेगा, जीरो। अब आप सोचो कि मैम ये लाइन तो एक तरफ ज्यादा छोटी है, एक तरफ बड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन जो है इट इज गोस अप टू द इंफिनिटी। अगर आपको लगता है ये है तो इसको और आगे तक कर सकते हो, जहां तक आप कर सकते हो इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइट तक। तो राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं दैट आर इन राइट साइड, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स, ओके, एंड द नेगेटिव नंबर्स आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो। मीन्स हम जीरो से ही कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए जीरो को हम क्या बोल रहे हैं, बैलेंस का मिडिल पॉइंट, ओके। सो इट इज अ लेफ्ट साइड। Or we can say that all integers are in ascending order from left to right. और एक इंपॉर्टेंट बात, क्लास 6 में आपने पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 1 to 10। तो डेफिनेटली आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां से यहां जब लाइन जा रही है तो 0 छोटा है, 1 बड़ा है। अगर -1 और 0 की बात करें तो -1 छोटा है, 0 बड़ा है। तो लेफ्ट से राइट में जाने पर कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, ओके। I think you all are understand about this point also. Now next is properties of the integers, means how we have to calculate the integers, how we have to add, how we have to subtract, how we have to multiply, and how we have to divide. On the number line, with the help of number line only, we can add, we can subtract, we can multiply, okay. So first of all we will discuss the property of addition. Addition of integer. Now in order to add two integers on a number line, we follow the following steps. हमें कोई भी दो नंबर्स, दो कौन से नंबर, इंटीजर्स, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव तो हमें ऐड करना बहुत इजीली आता है, बट एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तब भी वो ऐड होगा, तो हमें वो चेक करना है। कैसे करना है, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। With the help of example, we are explaining you. Add the following integers 6 and -9. Now, what we have to do? We have to make them add. तो हमें integers को add करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, number line draw करनी है। First we will draw a number line and mark the integer 6 on it. हमें क्या करना था, add 6 and 9 करना है, 6 में -9 करना है, सॉरी -9 ऐड करना है। तो हो सकता है ऐड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, 6 में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, -9 ऐड करना है। टू ऐड -9, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड आउट दिस थ्योरी। टू ऐड -9 we move 9 step to the left from 6, 9 step left। अब सबसे पहले हमें हमारा क्या है, जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, राइट हैंड साइड एंड इट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हमें नेगेटिव इंटीजर से ऐड करने होंगे किसी भी नंबर में तो लेफ्ट में जाना होगा। तो ये 6 था, नंबर 6 है, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, -9 ऐड करना है। तो मैं किधर जाऊंगी, लेफ्ट साइड में जाऊंगी। ये लेफ्ट साइड है एंड दिस वन इज राइट साइड। अब मैं कितना जाऊंगी पीछे, 9 स्टेप्स पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टेप्स कंप्लीट होने पर मैं कहां पहुंच गई, -3 पर। इसका मतलब -3 क्या आ गया, सिंपल आंसर हो गया अपना, ओके। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली ऐड, अदरवाइज बेस्ट सॉल्यूशन इज दिस, यू हैव टू गो लाइक दैट, ताकि हमें पता हो कि हमें कहां तक पहुंचना है। ये 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9. सपोज इसी क्वेश्चन में इसकी -9 की जगह ऐसा होता, इन प्लेस ऑफ दिस 6 + 12 -12, तो हम क्या करते? अगर -12 होता तो माइनस है, जब भी माइनस साइन होगा किसी नंबर में हमें क्या करना है? लेफ्ट में जाना है, और जब भी प्लस साइन होगा हमें कहां जाना है? राइट में जाना है. ओके, तो क्या है 6 में अगर -12 ऐड करना हो तो सिंपल 12 स्टेप बैक चले जाओ. यहां तक 9 स्टेप आ गया था अपना, ये 10, ये 11, ये 12, तो हमारा आंसर हो गया -6. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. देन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, हमने एडिशन पढ़ लिया, ठीक है. अब हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन. जरूरी थोड़ा ना हमेशा ऐड ही करना हो, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ सकता है. तो उस केस में क्या करेंगे जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. वी नो दैट इन द सब्ट्रैक्शंस fact is 7 - 2 = 7. 7 is the manuend and 2 is the subtrahend and 5 is the difference. In general हमारे पास 2 इंटीजर्स होंगे, उनको क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है. और हमेशा सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा कि बड़े में से छोटा ही सब्ट्रैक्ट होगा, छोटे में से बड़ा भी होगा. आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि हमारे पास 100 है, तो आप उसमें से डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है कि मैं इफ आई विल गिव यू द 10 चॉकलेट्स और आप बोलो कि मैम 10 में से हमने 10 ही फिनिश कर दी, 11 फिनिश कर दी, तो मैम ऐसा कैसे होगा? तो डेफिनेटली नहीं होगा. बट इंटीजर्स में होगा, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो देयर. ओके, so subtraction of the integers. Now what is the first step? First we will draw a number line and mark the mini end on it. Mini end मतलब 7 - 2 करना है हमें, तो 7 is the mini end and 2 is the subtrahend. जिसको subtract करना है वो subtrahend है, और जिसमें से करना है उसे क्या बोलेंगे? mini end. और जो आंसर आएगा that is the definitely that is the difference, because we are subtracting it. In subtraction we will get the difference only. Okay, first we will draw a number line and mark the mini end. Mini end क्या है हमारा? 7. तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें 7 मार्क कर देंगे. देन सेकेंड स्टेप क्या होगा? टू सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट. चलो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ये नंबर लाइन हमारी, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and there will be the negative integers are there, -1, -2, sorry, -3, like that up to the -infinity. Now to subtract a positive integer, we move to the left from the mini end. हमने mini end क्या मार्क किया था एग्जाम्पल में? अपना mini end ये था 7. अब हमें क्या करना है? we move the left, subtract the positive integer. हमारे 7 - 2 लिखा हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर्स था 2, उसको मूव करना है. कितना शिफ्ट करना है? 2 स्टेप्स. To move the left from the mini end as many steps as the second integer is. हमारे पास क्या था? 7 - 2 था, मतलब -2 का मतलब कितने स्टेप्स हो गए? 2 स्टेप्स हो गए. तो हम क्या करेंगे? बैक में जाएंगे. कितने स्टेप्स जाएंगे? 1 and 2, and we will get result. To subtract a negative integer, we move to the right, not left, as many steps as the second integers. With that, for this also I will explain you. To subtract a negative integer, जैसे suppose -1 था, -1 में से subtract करना है -2 को, ठीक है. To subtract a negative integers, we move to the right, not left. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि -1 था, इसमें से मैंने subtract किया, बट subtract किसको किया? नेगेटिव इंटीजर्स को किया. तो आप बोलो, आप अपने अकॉर्डिंग क्या है, अपना कंसेप्ट क्या है? हमें लेफ्ट में जाना है जब कम होगा. लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जब नेगेटिव इंटीजर्स का होता है, वी मूव टू द राइट, नॉट लेफ्ट. हम राइट में जाएंगे, लेफ्ट में नहीं जाएंगे. मतलब हम बैक में नहीं जाएंगे, हम आगे जाएंगे. तो कितना आगे जाएंगे? 1 and 2, and your answer would be 1. I think आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू अगेन 1. Okay students, I hope you all are understood.
So subtractions of integers we have discussed. Second is first step. We have discussed the subtraction of integers. This step we have discussed. This also we have discussed. Now the third step is the point thus we reach represent the difference of the step 3 is what? The point thus we reach represent the difference of the two integers. We reach to the integers. -1 में -2 किया हमने तो +1 पर पहुंच गए. 7 में से -2 किया, then we reach to the +5. Okay. Now with the help of example we can understand. Subtract the following integers. हमें इन्हें subtract करना है. 4 - 8 -5 -4. तो सबसे easy क्या है हमारे लिए? हमें सबसे पहले number line draw करेंगे. Okay. As we will draw the number line, after that we will discuss. First of all we will draw the number line. ये number line हो गई. अब मुझे क्या करना है? 4 - 8 करना है. 4 - 8 का मतलब क्या है? 4 में से आपको 8 सब्ट्रैक्ट करना है. तो सिंपल हमें क्या करेंगे? To subtract 8, we move 8 step to the left of the 4. 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है. अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लेफ्ट में, क्योंकि लेस होगा. लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में सपोज यहाँ लिखा हुआ होता 4 - -8, तो हम क्या करते? बताइए. If this type of question is there, same question, यहाँ तो -8 था, सिंपल था, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हम कहाँ चले गए? लेफ्ट में. बट अगर इसकी जगह ऐसा होता कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स होता, -8 होता, तो हम उस केस में कहाँ जाते स्टूडेंट्स? राइट. ओके. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. If you will, once you will understand now, you have to try to the questions, then you will be more confident. Okay. We have to write 4 because it is given in the question. 4 is written. -8 means we have to subtract. What is subtract? 8. So we have to move to the in left. How many steps? 8 steps are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And our answer is correct. That is -4. Okay. What we have subtract 4 - 8, answer is this. In place of this, if there is answer -8, question is this +4, then what we have to move? We have to show in place of this, the question answer is same. In both the cases, -4 is there. If I will write here answer also -4. So, but the representation of this question is this. Now, what is the representation of that question? In that question, what we have to do? My question is -8 + 4. That is equals to -4. So, I can extend this number line. -6, -7, -8. -8 + 4. -8 integer is there. I have to start from here. This is the starting point. अब मुझे कहाँ जाना है? +4. मतलब 4 स्टेप जाना है आगे. प्लस है और इंटीजर भी पॉजिटिव है, तो हम कहाँ जाएंगे? राइट में. 1, 2, 3, 4 और हमें आंसर मिल गया -4. इस केस में भी आंसर -4 था, इस केस में भी आंसर हमारा क्या हो गया? -4 हो गया. आई थिंक सबको समझ में आ गया आप तो. Mark integer -5 on the number line. Next question was there. It is the two questions was there. First question we have discussed 4 - 8 था, आंसर हमारा -4 है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? -5 में से माइनस करना है -4 को. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज द ड्रॉ द नंबर लाइन. नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है. नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी. अब हमारे पास क्या है? -5. तो हम कहाँ जाएंगे नंबर लाइन पर? -5 पर. ये रहा नंबर लाइन पे -5. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब क्या करना है? माइनस करना है. और जो नंबर है वो भी क्या है?
नंबर भी क्या है माइनस में नेगेटिव करना है और नंबर क्या है पॉजिटिव है। अगर प्लस करना होता और नेगेटिव इंटीजर होता तो भी हम बैक में जाते हैं। अब यहाँ डिफरेंस लेना है और इंटीजर्स हमारे क्या है पॉजिटिव है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी -5 में ऐड करना है -4। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि -5 उसमें ऐड करना है बट क्या करना है -4 करना है, तो नेगेटिव इंटीजर आ गया है। तो और अगर नेगेटिव इंटीजर आ गया तो हमें कहाँ जाना है बैक में जाना है। सो हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू मूव 4 स्टेप्स 1 2 3 4। अपना आंसर क्या हो गया -9। यही तो आंसर लेना था हमें। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके mark the integers -5 on the number. This is the steps how we have to do. After that example we can understand this also. That is the smaller natural number minus larger natural number, that is the larger natural number minus smaller. It's a very typical formula. I think you are not able to understand. Simple. आपने क्या लिया था smaller natural number 5 minus larger natural number, कुछ भी ले सकते हैं। It's our choice. Natural numbers are started from 1. 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 2 नंबर्स ले लिए, स्मॉलर माइनस लार्जर किया तो क्या आया। इसकी जगह पे मैं अगर माइनस कर दूं और क्या कर दूं लार्जर माइनस स्मॉलर, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। 8 माइनस 5 माइनस 8 क्या होगा -3 और 8 माइनस 5 करोगे तब भी 3 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा -3। So you can understand this. To add the two negative integers, ये फर्स्ट था, ये रूल सबको समझ में आ गया आई थिंक सो। नाउ सेकेंड क्या है, to add the two negative numbers we add the numbers without sign. Add the two negative, हमें जब दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो क्या करना है, we add the numbers without sign and then we put the negative sign. दो नंबर से दोनों नेगेटिव है, ये -7 इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये हमें समझ लिया ये वाला कंसेप्ट। अब क्या है, दो नंबर्स हैं -5 एंड -8, तो हमें क्या करना है, इसके लिए रूल है कि जब नेगेटिव के दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो हम क्या करेंगे, हमें भूल जाना है इफ द सेम टाइप ऑफ साइन आर देयर, ये हो या ये हो। दोनों केस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -5 में -8 ऐड किया या 5 में 8 ऐड किया, दोनों केसेस में बिकॉज द साइंस आर सेम, हियर इज फॉर नेगेटिव साइन बट पॉजिटिव एवरीबॉडी नोज, इसलिए मैंने वो साथ में लिखा है। अदरवाइज हमारा जो कंसेप्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए वो किसके लिए, नेगेटिव नंबर के लिए। तो -5 में ऐड किया -8 तो हम भूल जाएंगे कि यहाँ माइनस है, हम तो सिर्फ ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के सेम साइन है। तो 8 + 5 कितना होता है 13 और साथ में क्या लगा देना है माइनस। क्यों लगा देना है, कॉमन साइन, whatever the common sign, यहां नहीं लगाएंगे, या सिर्फ 13 लिखेंगे बिफोर द सम सो obtained. ओके, आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड। तो आज हमने डिस्कस किया हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, एडिशन ऑफ नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स। एंड लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने ये डिस्कस किया कि मार्क्स द इंटीजर -5 on the number line. So I hope you all are understood the today's lecture. Now we will start the next chapter from next topic, that is the properties of addition and subtraction. Thank you.